we will start with the next property, the fourth one, and that is distributive property. Distributive property states what? Distributive property will be checked on the basis of addition, subtraction, obviously multiplication and division. So distributive property, let us see how does it work. When we apply distributive property on rational numbers, when we check distributive property for rational numbers, we will be first applying it on addition. So when I am going to apply it on addition, it would be like A upon B multiplied by C upon D plus E upon F. Now when it comes to rational number, we have to consider this, but you have already applied this for natural numbers, whole numbers and integers in the earlier standards. We are just checking for rational numbers, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, p by q फॉर्म में आएगा, जैसे हम अर्लियर प्रॉपर्टीज के लिए कर रहे हैं वैसे ही. सो a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी प्लस e अपॉन f अगर हमें ये चेक करना है, तो दिस शुड बी इक्वल टू a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f. दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज. डिस्ट्रीब्यूट कर दो a अपॉन b को c अपॉन d के साथ भी और a अपॉन b को e अपॉन f के साथ भी. दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज. You can check this on your own. Let us take one example to explain distributive property. So a upon b into c upon d plus e upon f will be getting distributed like this. So let us see what example we are going to take. We are going to take 1 upon 2 into 3 upon 5 plus 7 upon 5. Deliberately not changing the denominator when it comes to addition because I don't want to get complicated in LCM. LCM ये concept हम आगे सीखने वाले हैं. फिलहाल LCM को भूल जाओ, इसलिए डिनोमिनेटर सेम. अब मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया? 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 5 पहले इसके साथ, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 7 बाई 5. जब हमने LHS कैलकुलेट किया, इसको बोला जाता है इक्वल टू के इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के उस साइड को बोला जाता है राइट हैंड साइड. इसलिए मैंने बोला LHS को जब हमने कैलकुलेट किया, LHS को जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया? 1 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 3 कितना? 10. 5 का तो एडिशन होगा नहीं, आई होप एवरीवन नोज दैट. 10 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 10. 10 upon 5 into 1 upon 2 is equal to 10 upon 10. On the other hand, let us see what do we get here. 3 upon 10 plus 7 upon 10, that is also equal to 10 upon 10. This is also equal to 10 upon 10. Are they equal? Yes, they are equal. That suggests that distributive property is applicable on addition. Distributive property is applicable on addition. It is satisfying addition. We always check the properties on the basis of addition, subtraction, multiplication and division. जिसमें से this is applicable on addition. Let us go further. So subtraction के लिए again one example, a upon b into c upon d minus e upon f. Yes or no? Okay. This would be distributed as follows: a upon b into c upon d minus a upon b into e upon f. Now simple, a upon b into c upon d minus e upon f. Let us take one example made with the same 1 upon 2 into 7 upon 5 minus 3 upon 5. Distribute it first. It would be 1 upon 2 into 7 upon 5 minus 1 upon 2 into 3 upon 5. When I subtract on this side, we get 1 upon 2 into 4 by 5. 7 minus 3, 4, 4 upon 5. That is equal to 4 ones are 4, 5 twos are 10. I am not going towards the lowest form, so don't worry. Cut, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. Right now, just paying attention towards the distributive property. इसमें क्या होता है ये हमें देखना है. So this is a question mark. This is not equal to right now. This is a question mark. 1 upon 2 into 7 upon 5. What is that equal to? It is equal to 7 upon 10. 1 upon 2 into 3 upon 5. What is that equal to? 3 upon 10. 7 upon 10 minus 3 upon 10. Is that equal to 4 upon 10? Yes. So are they equal? Yes. That means distributive property is applicable on subtraction as well. Distributive property satisfies subtraction as well. So
distributive property is satisfying addition and subtraction both. So we have managed to complete properties of rational number, which is the major part of this chapter. Okay, some questions based on this you will be getting from exercise number 1 from NCERT. Okay, you have to do that exercise on the basis of the explanation that I have did up till now. Now let us see the next topic. Now the next topic is additive inverse. We had started with the explanation of this chapter with additive identity, additive inverse, multiplicative identity and multiplicative inverse, if you remember. Out of which the next topic that we are taking is additive inverse. All of you know additive identity क्या है? Additive identity 0 है. एक बार क्विक रिवीजन कि कोई भी एक नंबर x नंबर पकड़ लिया, उस x नंबर को अगर मुझे एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करना है या अगर मैं उस x नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करता हूं तो मुझे सेम नंबर x मिलता है। तो वो बॉक्स में क्या वैल्यू होगा, तो वो बॉक्स का क्या आंसर होगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या वैल्यू होगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी का वैल्यू होगा 0, बिकॉज x प्लस 0 इज गोइंग टू बी x, 2 plus 0 is going to give you 2, 3 plus 0 is going to give you 3. What does that mean? That means when a number is added by additive identity, it gives you the same number. देखिए आप मैच करते जाइए, एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में सेम नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में सेम नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर, यानी एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर को ऐड किया तो सेम नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर को उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको मैच कैसे करना है मैं बता रहा हूं। ओके, सो नाउ एडिटिव इनवर्स ये कहां से आया? एडिटिव इनवर्स ये आया कि जब आपको एडिटिव आइडेंटिटी लाना हो, जब आपको 0 कहीं से लाना हो, कहीं 0 जनरेट करना हो, आपके पास 4 है मान लिया, बट 4 से अगर आपको 0 पे जाना है तो 4 में कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे हम 0 तक पहुंचे, या 4 से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे हम 0 तक पहुंचे। अगर मैंने बोला 4 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आएगा। और अगर मैंने बोला 4 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा, 4 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा। Now there comes a existence, now there comes a requirement of additive inverse. Additive inverse are nothing but negative numbers. Additive inverse are nothing but negative numbers. 4 का नेगेटिव नंबर क्या होगा, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4। क्योंकि ये आप लोगों के दिमाग में चल ही रहा होगा कि 4 प्लस क्या करने से 0 आएगा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा -4, क्योंकि लेक्चर के शुरुआत में एडिटिव इनवर्स बताया गया था, लेक्चर के शुरुआत में एडिटिव इनवर्स एक्सप्लेन किया गया था। सो 4 प्लस दिस बॉक्स इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी अगर मिल रहा है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एडिटिव इनवर्स। और अगर मैंने सवाल ऐसा बना दिया -5 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, -5 में क्या ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर -5 का एडिटिव इनवर्स, बट -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 का एडिटिव इनवर्स होगा +5, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +5। सो -5 + 5 इज इक्वल टू 0। ये क्यों इसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया जा रहा है आज, क्यों इतना इसके ऊपर वेटेज दिया जा रहा है, बिकॉज आगे के कैलकुलेशंस, आगे के यानी 9th 10th 11th 12th ये सारे कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं जाके इसके ऊपर खत्म होते हैं। तो इसीलिए आपके ये जो कंसेप्ट है, ये बेसिक्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। भले ही इसमें अगर हमने एक और दिन दे दिया, एक और लेक्चर दे दिया तो भी चलेगा, बट ये बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, ओरली बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए +1। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, तो -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा, -3। एडिटिव इनवर्स ऑफ 100 क्या होगा, -100। एडिटिव इनवर्स ऑफ -20 क्या होगा, +20। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 क्या होगा, +3। एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 क्या होगा, +4। एज सिंपल एज दैट। ओके, नेगेटिव ऑफ द नंबर। अब -3 का या -4 का एडिटिव इनवर्स +4 कैसे होता है। 2 का एडिटिव इनवर्स आप 2 के बाहर माइनस साइन लगाते,
-3 का एडिटिव इनवर्स, आप -3 को ब्रैकेट में डालो, उसके बाहर माइनस की साइन लगा दो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, सो +3 हो जाएगा। सो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +3, और +2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2। नाउ फॉर दैट मैटर x का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? हमेशा -x, y का क्या रहेगा? -y, -z का क्या रहेगा? +z। अब ये x y z की जगह पे आप नंबर कोई भी डालो, एडिटिव इनवर्स तो वही रहने वाला है, एडिटिव इनवर्स थोड़ी चेंज नहीं होगा। अब ये बात है कि आगे चल के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कंफ्यूजन होता है कि एडिटिव इनवर्स यानी क्या और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या। तो मैं आप सब लोगों को एक ट्रिक बता दूं कि एडिटिव इनवर्स का पहले 3 लेटर क्या है? ऐड। एडिटिव इनवर्स के पहले 3 लेटर क्या है? ऐड। तो आपको एडिटिव इनवर्स जब पूछा जाएगा तो बस ऐड का अपोजिट आंसर रहेगा। ऐड का अपोजिट यानी क्या? नेगेटिव। ऐड प्लस साइन, नेगेटिव माइनस साइन। बस आप ये याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने आप याद रहेगा। आप सिर्फ इतना याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने आप याद हो जाएगा, या अपने आप आपका कंफ्यूजन हट जाएगा। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बीच का अंतर आपको समझ जाएगा। क्या याद रखना है? एडिटिव इनवर्स के पहले 3 लेटर्स क्या है? ऐड। ओके, सो इफ वी हैव कंप्लीटेड एडिटिव इनवर्स, वी कैन गो फर्दर टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आफ्टर वी कंप्लीट एडिटिव इनवर्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाने के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से शुरुआत करनी पड़ेगी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बेसिस पे आप मुझे बताएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स विल गिव यू 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस बॉक्स विल गिव यू 4, -5 मल्टीप्लाइड बाय दिस बॉक्स विल गिव यू -5। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है? हर एक बॉक्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ऑब्वियसली इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी? यस, 1, करेक्ट। सो 3 into 1 3, 4 into 1 4, -5 into 1 -5। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लानी है। यानी क्या कि 5 को किस चीज से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। यानी 5 इंटू विच बॉक्स, यानी 5 इंटू सम बॉक्स, मतलब 5 इंटू सम क्वांटिटी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जनरेट होगा। ये अगर हमने आपको पूछा तो आप इस बॉक्स में क्या वैल्यू डालेंगे? क्लास की शुरुआत में हमने ये बताया था कि 5 इंटू बॉक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो बॉक्स में क्या आना चाहिए? विल इंटीजर सफाइस योर आंसर? विल इंटीजर गिव यू द आंसर? नो, नॉट एट ऑल। आपको थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। क्या क्या रहता है हमारे पास? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड करेक्ट फ्रैक्शंस, ये सब मिला के रैशनल नंबर होते हैं। यहां पे कौन काम में आएगा? फ्रैक्शन काम में आएगा। पर 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है? सो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, बिकॉज 5 विल गेट कैंसल, बिकॉज 5 विल गेट कैंसल। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 1. So ये 1/5 is multiplicative inverse of 5. So this 1/5 is multiplicative inverse of 5. अब मुझे बताइए 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5 होगा। 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? कैसे निकालते हैं? 1/6 यानी कितना? 6। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/7। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा एकदम से। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सोचो 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 सोचो। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1, बट 5/1 इज सेम एज 5, जो कि पहला। So that is what multiplicative inverse is. Correct? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? Okay, let's go further.
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया। इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, बट दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। राइट नाउ वॉट एवर वी हैव taught you, just revise it. Our next video will be in continuity to this and will be given to you, will be broadcasted to you within a day. Okay, so don't worry about it. We will create that series. We will explain this chapter in 2 or 3 videos and all the 2 to 3 videos will be provided to you in a sync. ठीक है, thank you.